Hello everyone, this is Animated Physics Studio, and today we are going to solve some previous year questions on the motion in straight line. So इस चैप्टर में थ्री मेजर्स फॉर्मूला है और we already discussed about them in detail in our previous videos. So अगर वो आपने देखनी है तो प्लीज वहाँ पे जाके देखिए. So we have formula as v use v square is equal to u square plus twice of as. V is equal to U plus AT and S is equal to UT plus half AT स्क्वायर. ये तीन फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे. सो ये बस आपको याद रखने चाहिए. इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज. सो वी आर मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is a ball is thrown vertically upward with speed u. So this u is the initial velocity. U is the initial velocity. It is a initial velocity. The maximum height h. Find the ratio of times at which it is a height is at height h by 3 during ascent and descent. मतलब क्या बोला गया है कि एक बॉल को ऊपर उछाला गया है और with initial speed of u it reaches to maximum height as h. मतलब यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है. सो इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में उछाला गया है तो ऊपर जाने का एक मोमेंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे उसकी हाइट h by 3 होगी. दिस विल बी h by 3 हाइट. उस टाइम पे t हम क्या कंसीडर करते हैं t1. Again after that it will move in upward direction. It will go in upward direction. It will reach at maximum height. Maximum height मतलब क्या? इस पॉइंट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो. It will be a at this point डायरेक्शन विल चेंज मतलब अपोजिट होगी. सो इसके बाद मैं बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन. सो बॉल क्या होगा? इट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, it will be a capital H total maximum height. It will be a maximum height. It will be a maximum height. Again, at some point, at some time T2, the height difference it will be h by 3. It will be a h by 3. So ये T1 और इस T2 उसका हमें क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया. मतलब we need to find T1 divided by T2. Okay, so that's our question. So जो मैंने अभी डिस्कस किया वी नीड वी हैव थ्री डिफरेंट फॉर्मूलाज. सो उसको यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे करेंगे. सो द वी हैव इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ ए टी स्क्वायर. अभी हमने हाँ ये वाला फॉर्मूला क्यों चूज किया? क्योंकि इट एक्सप्लेन्स h by 3. मतलब s जो डिस्प्लेसमेंट है वो h by 3 है और हमें फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है. वो दोनों चीजें यहाँ पर, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला चूज किया. ओके, सो एट h by 3 it will be u t t plus 1 by 2 a t square. Now here a is the acceleration. सो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन का मतलब डिफरेंट एक्सेलरेशन को हम कोई दे नहीं रहे. सो कौन सा एक्ट करेगा? ओनली a इज इक्वल टू g which is equal to acceleration due to gravity, which is equal to acceleration due to gravity. Okay, वही उस पे काम करेगा. Now what will the sign? As movement is in upward direction, the acceleration due to gravity is in downward direction, so sign will be a negative sign. So the equation becomes h by 3 which is equal to u t plus minus half g t square. Okay, so we are going to solve this equation and also here will at maximum height what will happen? We'll see. I'll just write this equation as equation 1. At maximum height at h what will happen? If you remember there are two different formulas. Okay, so here we will
if we apply v square is equal to u square plus twice of as I said, if we put the acceleration, if there is no other acceleration, so acceleration due to gravity, if we put v square is equal to u square minus 2g s, right? So at h, so s की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h at x मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा मतलब क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी इट विल बी 0 which is equal to u square minus 2g h, okay, 2g h. So from here you will get h is equal to u square upon 2g, u square upon 2g. We'll put this in equation 1. Now equation 1, what will happen to the equation 1? h के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u square upon twice of g into 1 by 3 as it is equal to u t minus half gt square, gt square. If we simplify this, it will be u square upon 6g which is equal to u t minus 1 by 2 gt square. I will multiply whole equation by 6g upon u square, because मुझे ये चीज नहीं चाहिए इधर, तो इसके वजह से मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो इट विल बी 1 which is equal to 6g upon u square into ut minus 6g upon u square gt square. Okay, if we okay, I missed 1 by 2 here, 1 by 2, so it will be a 6 a u और एक u कैंसिल हो जाएगा, so it will have gt upon u minus 3, the g or a g, it will be g square t square u square, so I can write gt upon u whole square, it will be a whole square, right? So we are moving in next slide. I will explain, I will write that last equation again. It is 1, it is 1 is equal to 6, this is 6 g t divided by u minus 3 g t divided by u square. Okay, we have this equation. I'll put g t upon u as a x. So what will happen to the above equation? It will be 1 is equal to 6x minus 3x square. If we rearrange this, it will be 3x square minus 6x is equal to, sorry, plus 1 equal to 0. So we have this equation. I will write it as equation 2. We need to solve this equation, find the roots. उसके अगर root मिल जाएंगे तो we'll substitute this value and we'll have our answer. Okay, we'll have our answer. So जो फॉर्मूला है रूट फाइंड करने के लिए, आई थिंक यू माइट हैव, यू आई थिंक ये तो आपने पढ़ाई होगा पहले भी. सो इट द फॉर्मूला इज minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, right? This is the formula to get the roots of a quadratic equation. So यहाँ पे जो 3 है, it is a value of a, so minus 6 it is a value of b and 1 is c. If we put this here, so what will happen, x is equal to minus b, b की value है minus 6, so it will be a minus of minus 6 plus minus square root of b square, so it will be minus 6 square, it will be a 36 minus 4 into a की value क्या है 3
and c की वैल्यू है 1 अपॉन, तो डिवाइडेड बाय इट विल बी a 2 into a की वैल्यू है 3. So if we simplify this, it is a 6 plus minus under root 36 minus 12 upon 6. Okay, so okay, we write over here, so x is equal to uh, x is equal to 6 plus minus square root of it will be a square root of 24 upon 6. We write it as a plus minus 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 into 4 upon 6. So it will be x is equal to square root of 4, it will be 2. So उसको दो को हम बाहर निकाल सकते हैं, 6 plus minus 2 square root of 6 upon 6. Okay, so अगर दो से हम सब ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो व्हाट विल हैपन, 3 plus minus square root of 6 upon 3. Okay, okay, understood, यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ व्हाट वी हैव, x की वैल्यू क्या है, gt अपॉन u इज इक्वल टू x है, राइट. सो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, gt, और एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे प्लस माइनस है, सो वी विल हैव द रूट्स x1 इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3 and x2 is equal to 3 minus square root of 6 divided by 3. So we have these two different solution. It will be a plus sign. And why we are taking, तो ये पहला वाला माइनस क्यों ले रहे हैं आप समझो, जब बॉल को पहले हम फेंक रहे हैं, सो इट विल बी उसको रीच करने में पहली वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, उसको टाइम क्या लगेगा, कम रहेगा, फिर वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, देन इट विल कम बैक और h/3 अटेन कराएगा, उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. सो प्लस we are taken for the second root and minus we are taken for the first root. So if you put x1 के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, g और t1 3 minus square root of 6 divided by 3 and और क्या रहेगी वैल्यू, g t2 divided by u which is equal to 3 plus square root of 6 divided by 3. Okay, अगर हम इस दोनों का रेशियो ले रहे हैं, मतलब g t1 अपॉन u डिवाइडेड बाय g t2 डिवाइडेड बाय u which is equal to 3 minus square root of 6 upon 3 divided by 3 plus square root of 6 divided by 3. So ये g कैंसिल हो गया, इस g के साथ u कैंसिल हो गया, इसके साथ this 3 will get cancelled. So we'll have the equation t1 upon t2 is equal to 3 minus square root of 6 divided by 3 plus square root of 6. That's the answer. If you further simplify, what we can do, we can write it as root 3 into root 3 minus square root of 6 को क्या लिख सकते हैं, square root of 2 into square root of 3 divided by square root of 3 dot square root of 3 minus square root of 2 into square root of 3, right. तो इसको हम ये क्या, square root of 3 square root of 3 square root of 3, this will get cancelled, so we'll have the equation square root of 3 minus square root of 2 upon square root of 3, sorry, this is the plus sign, plus square root of 2. So our answer, is t1 upon t2 which is equal to 3 minus square root of 2 upon 3 plus square root of 2
So that's our answer. Okay, that's our answer. Okay, understood? Now we are moving to the next question. Here t is equal to root x plus 4. Then हमें क्या पूछा गया है dx by dt at t equal to 4 equals. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये एक्चुअली इसका क्वेश्चन है ही नहीं. तो इस actually this dx by dt it defines it's called as velocity. It's called as velocity. So this question is from the motion in straight line. Okay, so whenever you need to find the dx by dt, ये पूरा इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा x इक्वल टू समथिंग लाइक दैट. यू नीड टू मॉडिफाई. सो इसको रीअरेंज करेंगे. हम कैसे करेंगे? इट विल बी t माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x. सो x इज इक्वल टू t minus 4 bracket square. Now we can take the derivative of this, which is dx upon dt is equal to d by dt t minus 4 square. Okay, यहाँ पे और क्या दिखा दिया गया है? हमें क्या चाहिए? हमें dx by dt की वैल्यू व्हेन t इक्वल टू 4, मतलब टाइम क्या रहेगा? 4 सेकंड रहेगा. उस टाइम पे dx by dt मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, ये पूछा गया. ओके, सो इफ वी सॉल्व दिस differentiation, it will be 2 t minus 4. सो इफ dx by dt हमें मिल गया, राइट? अभी हमें क्या फाइंड करना है? dx by dt हमें फाइंड क्या करना है? dx by dt when t equal to 4 सेकंड. t equal to 4 सेकंड. सिंपली क्या करेंगे? इसको इस जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे. इफ यू पुट 4 सेकंड, 4 minus 4 it will be 0. So it will be a dx by dt at t equal to 4, it will be a 0. That's the answer of the this question. Understood? Okay, we'll move to the next question. This is very interesting question. If you see, if you first read the question, then we'll solve. First, the understanding of question is very important. So before jumping to solve the question, solve the example, पहले question को समझो. After understanding the question, then only move to the answer. Okay, अभी question क्या है? A stone is dropped from a balloon moving upward with velocity 10 meter per second at height of 75 meter. Okay, take acceleration due to gravity 10 meter per second square. Find the time taken by the stone to reach the ground. Okay, क्या है कि एक बलून है. सो इट्स ओके, ये क्या कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जब हाइट 75 मीटर थी, जब हाइट इस पॉइंट पे जब 75 मीटर पर वो पहुंचने के बाद उसने क्या किया? स्टोन यहाँ एक इंसान ने यहाँ पे एक स्टोन ड्रॉप कर दिया. तो हुआ क्या? इस पॉइंट पे हाइट कितना था? हाइट कितना है? 75 मीटर. हाइट 75 मीटर. और इस पॉइंट पे इसकी अपवर्ड वेलोसिटी दी गई है, राइट? इट्स मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है. तो उसकी अपवर्ड वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट पे. अब उन्होंने पूछा क्या गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. मतलब ये जो स्टोन है वो उसको वापस, ये क्या होगा? पहले तो ये स्टोन जो है पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आएगा और ग्राउंड पे आएगा, राइट? तो ये टोटल टाइम चाहिए. ये यहां से जो जा रहा है उसको, उसका ऊपर वाला और
जो ग्राउंड पे आएगा उसका क्या चाहिए, टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना। ओके, तो पहले हम उसको, जो भी हमारे पास है तो हम उसको देखते क्या क्या गिवन है। अब समझो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी बताई जो क्या थी, यहाँ पे जब पत्थर फेंका गया तब की वेलोसिटी, मतलब जब यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ दिस स्टोन। जो उसकी डायरेक्शन क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। velocity is in upward direction, so it will u is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट यहाँ की, अगर ये ऊपर का पॉजिटिव है तो ये वाला जो होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी 75, इट विल बी अ माइनस नेगेटिव, राइट। इट विल बी अ माइनस 75 मीटर। दिस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वैल्यू ऑफ s। ओके, acceleration due to gravity is in downward direction, so it will be also a negative, it will be a minus 10 meter per second square। okay, so हमें क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढना है। so we have equation, हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, s, हाँ, हमें हाइट डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम विल यूज दिस इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम ये पूरा नोटेशन के साथ अगर हम पुट कर रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज -75, -75, यू कितना दिया गया है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इट इज 10 इंटू टाइम हमें फाइंड करना है प्लस 1/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, acceleration due to gravity which is in downward direction, so negative of 10 into t square। ओके, अब इसको क्या है, हम ऑलरेडी हमारे पास अभी वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 75 इज इक्वल टू 10 टी, ये कितना हुआ, -5 टी स्क्वायर, -5 टी स्क्वायर। अगर इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो 5 टी स्क्वायर -10 टी -75, राइट। अभी पूरा इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर -2t -15 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता होगा ऑलरेडी, वी नो फैक्टराइजेशन मेथड। सो इफ यू यूज द फैक्टराइजेशन मेथड, we'll get t minus 5 upon t plus 3 equal to 0। So we will have either value of t equal to 5 or t equal to -3। लेकिन टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, टाइम विल ऑलवेज हैव द पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज हैव द पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो द आंसर विल बी t equal to 5 second, t equal to 5 second, that will be the answer। okay, understood। इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा उसको लॉन्ग कट बोल सकते हैं। उस क्या कर क्या जब स्टोन को छोड़ा गया, इट विल गो अप इन अप डायरेक्शन, ओके, एंड देन इट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट हियर। सो अगर इसको हम दो में डिवाइड कर दे, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, राइट। ये ऊपर जा रहा है तब तक हम क्या उसको डिसाइड करेंगे, वो फर्स्ट स्टेप है, और नीचे आ रहा है वो सेकंड स्टेप। सो इन फर्स्ट स्टेप u is equal to 10 meter per second, we don't know the s and anything, we need to find the s value। okay, we need to find the s value। we have three different equation, तो इसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं। अभी एक बात समझो, यहाँ ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है।
मैक्सिमम हाइट मतलब क्या होगा, v इक्वल टू 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, v इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट पार्ट में अगर ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस, ये समझाने के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसको, उस प्रॉब्लम में अगर पहला वाला समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसको हमने सिंपली क्या किया, वो पत्थर ऊपर जा रहा है देन नीचे आ रहा है, तो हम ऊपर जाने का जो है उसको फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, और जो नीचे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेप। ओके, सो हम फर्स्ट स्टेप में अभी अप्लाई कर रहे हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, राइट। सो व्हाट विल हैपन, वी स्क्वायर, यहाँ पे v क्या है, मैक्सिमम हाइट पे v क्या है, 0, वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या दी गई है, 10 स्क्वायर। नाउ द 2 इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी माइनस उसका साइन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है, 10 इंटू दिस, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि इस पॉइंट से ये वाला जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज 75 मीटर, राइट, विच इज 75 मीटर, वो तो पहले ही दिया है। और इस पॉइंट से हम ऊपर देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, सो इट विल बी एस फॉर, विल राइट एस बिकॉज वो हमें फाइंड करना है, उसको बाद में हमें यूज करना है। सो इट विल बी if you take over here, it will be a 20 into s is equal to 100, which is s is equal to 5 मीटर। s is equal to 5 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब ये टोटल मैक्सिमम हाइट कितना हो गया अब, 80, कितना हो गया, 80 मीटर्स। ओके, मैक्सिमम हाइट कितना है अब, 80 मीटर। अब इस पॉइंट पे हमें कितना टाइम लग रहा है, हमारा मेन क्या है कि हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। ये थोड़ा लॉन्गर है, लेकिन इसमें जो भी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो वी हैव इक्वेशन v is equal to u plus 80, we have this equation. I'm using that three equations only to solve the example, right? So v equal to 0, we know that it's 10, a it will be a minus g, and thus this, for this part we will take time as t1 and this will take t2. So we need to find the t1 plus t2. So acceleration due to gravity will be the 10, so it will be, if we take over here 10 into t1 equal to 10, so t1 will be 1 second, the unit will be 1 second. Okay, yes, I unit. Now we are aware that here जो है स्टोन वो यहां से गिरेगा, उसकी हाइट कितना है, 80। अभी मूवमेंट कौन सा है, नीचे के डायरेक्शन में, राइट। सो वी नो दैट इट्स गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस टाइम पे इन पार्ट 2, इन स्टेप 2 हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू 80 मीटर, s इज इक्वल टू 80 मीटर। और क्या क्या दिया है, अब यहाँ पे देखो, अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, पहले स्टेप में ये वाला फाइनल वेलोसिटी था, यहाँ पे जो वेलोसिटी है सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। सो वी हैव u इक्वल टू 0, राइट। सो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो अब क्या चेंज हो रहा है वो देखो थोड़ा। अभी मूवमेंट कैसा है, नीचे डायरेक्शन में, राइट, नीचे डायरेक्शन में मूवमेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, उसी डायरेक्शन में, तो साइन विल बी ए पॉजिटिव। अगर मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन के, तो साइन विल बी ए पॉजिटिव। तो हम अगर वैल्यूज पुट करें तो इट विल बी 80, u इट्स 0, प्लस इट विल बी ए प्लस हाफ gt, g कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगेन मूवमेंट देखो, मूवमेंट कैसा है स्टेप 2 में, नीचे के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे के डायरेक्शन में, सो इट्स वैल्यू, द वैल्यू इज पॉजिटिव एंड वी विल कंसीडर इट एज अ t2। सो स्टेप 2 में जो भी टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, t2। सो इट विल बी 80 इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर। सो t स्क्वायर is equal to
16. So T equal, sorry, I forgot to mention T2. It's T2 square. It's T2 square. So T2 is 4 second. Okay, T2 is 4 second. हमें क्या पूछा गया है कि टोटल टाइम. सो टोटल टाइम is equal to T1 plus T2, which is total time equal to 5 सेकेंड. राइट. हमने पहले वही निकाला था यहाँ पे. द आंसर वाज सेम थिंग. ये ठीक है, मतलब ये सबसे फास्ट मेथड है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा कंसेप्ट से निगेटिव साइन से अगर वहां पे थोड़ा में से वो हो गया तो थोड़ा आंसर में दिक्कत आएगा. इसलिए मैंने क्या किया कि और एक जो कंसेप्ट है, हम सेम इक्वेशन वही, वो भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है, लेकिन इसमें सम जो भी इक्वेशन है उसको सब कंसेप्ट है, उसको कैसे करेंगे वो बताया गया. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी. उसका इक्वेशन दिया गया है एंड फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0. इट्स ये बहुत सिंपल है. एक्सेलरेशन क्या रहता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ऑलरेडी वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है, सो वी कैन से d बाय dt ऑफ 2 e रेज टू t प्लस 3 इंटू e रेज टू 2t. अगर इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो क्या होगा? acceleration is equal to a is for the acceleration. So first का डेरिवेटिव क्या रहेगा? e of t का डेरिवेटिव e of t रहता है, so it will be e of 2 into e of t, e raised to t plus 3 into e raised to 2t, and this 2t का डेरिवेटिव with respect to time it will be a 2. So equation 2 into e raised to t plus 6 e raised to 2t. हमें क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, उसमें t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा? 2 प्लस 6 विच इज 8 एंड यूनिट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड square. 8 meter per second square. Today we'll stop here, and there are two more questions are there, and we'll solve those questions. Those are very exciting question, very conceptual question. उसमें बहुत अच्छे से हम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी. अगर आप जेई और नीट दे रहे हो तो फिजिक्स के क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, लेकिन अगर उसको पार्ट में डिवाइड करो, उसको पार्ट में समझो, तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा. तो हम इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस.